Okay, students, till now what we have covered is about projection of line. जो हमने किया projection of line, लाइन के उसके वेरियस केसेस किए हैं, जैसे लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन कर लिया हमने, लाइन पैरेलल टू वन प्लेन परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, ओके, एंड line inclined to one plane and parallel to another plane. Okay, so this is the next case in which line is inclined to both plane. इसका मतलब है लाइन दोनों प्लेन एच पी एंड वी पी के इंक्लाइंड है और एंगल बना रही है कुछ ना कुछ दोनों के साथ. ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ लाइन which is inclined to both plane. Okay, so let's say I am taking this as my line. Okay, let's say this point is A and this point is B. Okay, let's say this line is inclined to both plane. Okay, so its projection when you look from the top, okay, means top view, so its projection would be let's say somewhere over here. Okay, similarly when you look from the top, its projection would be somewhere over here. So joining these 2 points, okay, when you join these 2 points you will get a projection on the HP. Okay, now just we consider this line, and if you extend this, what will you see? Extend this. Okay, this is just for the understanding, you don't need to draw in the exam this. Okay, and this is the projection AV. Extend this also, since these two are intersecting over here, so this is the angle, okay, with the horizontal plane. Okay, now projection on the vertical plane. Let's say this is the projection on the vertical plane and here, so this line, okay, so on the vertical projection, this is the vertical projection. Okay, so we know the vertical projection means front view and top view, both well lying on the same line, यानी दोनों ही एक ही लाइन में होंगे जब हम इस HP को खोलेंगे. ओके, सो फॉर द sake of convenience, this and this. Okay, is it clear? so इसका मतलब है कि A डैश B डैश एंड AB दोनों एक ही लाइन में होंगे. अगर मैं इस HP को बाद में जब खोलूँगा तो उसके बाद स्टेप क्या होता है? वी रोटेट HP बाय 90 डिग्री. ओके, is it clear? When you rotate this HP by 90 degree, what will happen? This projection AB, okay, I will draw over here. This would be my XX line and here would be my A dash
B dash, and whatever be the distance given, this would be my A B. Okay, and here would be A naught and B naught. This would be the projection. Okay, till now. So this is the case, means when a line is inclined to both plane, your answer would be like this, है ना. बट ऐसा नहीं है, मतलब this is for the understanding, but how to solve this question is having a different method. Okay, this is for the understanding when a line is inclined to both plane. Okay, this we have seen line is making certain angle theta, let's say, yeah, or alpha with HP. Similarly, if you extend this, this will make angle over here beta. Okay, so this is clear from this diagram, means line is inclined to both plane. With HP it is making angle alpha, and with VP it is making angle बीटा. ठीक है, कब? जब हम लाइन और उसकी प्रोजेक्शन को एक्सटेंड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ एंगल बना रही हैं. ओके, गुड. ओके, नाउ we will learn the method how to solve this problem. Okay, when a line is inclined to both HP and VP, how to solve the problem. So let us take some values. Line AB, okay, having length 50 mm, making angle theta with HP 45 degree, and phi with VP 30 degree. Okay, draw its projection. Draw its projection. Okay, find true length. In both planes, means HP में भी पता करना है and VP में भी पता करना है. Okay, so just remember the step. First of all, draw a line, means intersection line XX and VP. So step 1, what would be the step? Step 1, हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि लाइन मेकिंग एंगल विद HP. ओके, लेट्स से स्टेप 1, लाइन मेकिंग एंगल with HP and parallel to VP. सबसे पहले एक एंगल को ख़त्म कर देना है. ठीक है, तो पहला है HP के साथ एंगल बना रही है. HP के साथ कितना बना रही है? 45 डिग्री. अगर HP के साथ बना रही है, कहाँ पे दिखेगा? VP में दिखेगा. और यहाँ पे कुछ रह गया था, एंड ए ऑफ line is 15 mm from HP and VP. ओके, HP and VP से 15 mm. ओके, सो अगर लाइन मेकिंग सर्टेन एंगल विथ HP, तो सबसे पहले मुझे एंगल वाला व्यू बनाना है. तो मैं 15 mm ऊपर चला गया, यहाँ पे पहुँच गया VP के अंदर. तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा A डैश. कितना एंगल है? 45 डिग्री. सो आई विल ड्रॉ अ लाइन 50 mm लेंथ एट 45 डिग्री. ओके, और लाइन अगर HP से 15 है, ये HP वाले डायमेंशन है सारे, VP से भी 15 दी हुई है, VP से भी 15 दी हुई है. तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास A.
और लाइन पैरेलल है अभी वीपी के, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, दिस वुड बी माई प्रोजेक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, हमने क्या किया है कि लाइन को अभी एक के पैरेलल मान लिया है, दूसरे के साथ इंक्लाइंड, दोनों एंगल नहीं ले रहे एक साथ, पहले मैं एक एंगल लूँगा। ओके, स्टेप 2, अब इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, लाइन मेकिंग एंगल विद VP एंड पैरेलल टू HP। ओके, अगर लाइन VP के साथ एंगल बना रही है, कितना बना रही है, ये बना रही है 30। ओके, तो 15-15 का तो डिस्टेंस है ही ऑलरेडी, VP के साथ है तो HP में मुझे दिखेगा। तो यहाँ से 30 एंगल है, तो लाइन मेरी इससे थोड़ी दूर जाएगी क्योंकि बंद हो जाएगा ना थोड़ा सा मूव इसका। तो ये मेरा एंगल हो गया 30, लेंथ वही है, ये भी कितनी होगी 50 mm। ओके, अब इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। ओके, सो ये था, इसको मैं मान लेता हूँ B1 तो ये B1 हो जाएगा, इसको B नहीं मानूंगा, B नहीं B1 मानूंगा। ओके, और ये A था, इसको मान लेता हूँ मैं B2, तो ये हो जाएगा B2। इज़ इट क्लियर, कोई डाउट अभी तक? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, दो एंगल दिए हुए थे दोनों प्लेन के साथ, सबसे पहले एक प्लेन के एंगल को ख़त्म कर दीजिए। मैंने वीपी को ख़त्म कर दिया और एचपी वाला एंगल ले लिया। अगर वीपी को ख़त्म किया तो उसके लाइन पैरेलल बन गई है, तो वो वाला केस ग्रीन में ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने एचपी का एंगल ख़त्म कर दिया तो लाइन एचपी के पैरेलल हो गई है, और वीपी का एंगल ड्रॉ करके उसकी प्रोजेक्शन बना दी, ये वाली। ओके, ठीक है अभी तक? ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ये दो स्टेप करने के बाद ये जो B1 है ना, जो हमने पहले ड्रॉ किया, हमें एक लोकस लाइन लेनी है जो इस B1 में से पास हो, यानी एक मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है पैरेलल टू XY, जो कि ठीक है पैरेलल टू XX, जो कि B1 में से पास हो। सिमिलरली मुझे एक और लोकस लाइन लगानी है, दोनों तरफ ऐसे ही करना है, जो B2 में से पास हो। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड स्टेप, A' as a center, A' as a center, ठीक है, रेडियस इक्वल टू A' B2', A' को मैंने सेंटर ले लिया, A' B2' को रेडियस ले लिया। ड्रॉ एन आर्क, टू इंटरसेक्ट, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी, टू इंटरसेक्ट लोकस लाइन, जो लोकस लाइन लगाई है हमने ऊपर, थ्रू कहाँ से लोकस लाइन लगाई है, थ्रू B1। ओके, यानी A1 को मैंने सेंटर लिया, ये रेडियस लिया, उसके बाद मैंने ये लोकस लाइन, अब मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया एक। ओके, ठीक है। सिमिलरली अब आपने करना क्या है, ये पॉइंट से मैं एक लाइन ना डॉटेड पहले एक ड्रॉ कर लूँगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, सो स्टेप 4 यही रिपीट करेंगे, किसके लिए, A एज अ सेंटर, HP में चला जाऊँगा मैं, A एज सेंटर
और रेडियस इक्वल टू AB1। ओके, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाऊंगा टू इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट करेगी, लोकस लाइन, कौन सी, जो किस में से पास हो रही है, B2 में से, लोकस लाइन थ्रू B2। ओके, तो वो लोकस ये वाला पॉइंट है, ये ए सेंटर AB1 एज अ रेडियस, यहाँ से मैं जो आर्क लगाऊंगा वो यहाँ से पास होगी, यानी इस पॉइंट में से। ओके, सो ये जो पॉइंट अब आया ना, आर्क लगाने के बाद लोकस लाइन पे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट है मेरे पास B डैश एक्चुअल में। ओके, और ये जो पॉइंट नीचे वाला है ना, ये है B। तो ये है मेरी एक्चुअल प्रोजेक्शन, A डैश ऊपर B डैश और यहाँ पे AB। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल प्रोजेक्शन। और ये भी याद रखना है कि फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो B डैश और B डैश एंड B बोथ आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ये दोनों सेम लाइन में होंगे। देखिए दोनों सेम लाइन में है, अगर ये सेम लाइन में नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन गलत है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू ड्रॉ। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, सॉरी, A डैश को इस B डैश से मिला देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी A और B को मिला देना है। ओके, तो ये बन जाएगी मेरी एक्चुअल डायग्राम। अब इसको याद रखना है, इस डायग्राम को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम लाइन, ओके, in which line is making angle with HP and VP. Is it clear?